Assalamu alaikum, grade 5. How are you all? I expect that you all are safe and sound. Grade 5, this is your English lesson, and today we'll be going to our very beautiful unit, that is unit number 10 in your English book. So take out your English books, open your English books at page number 49 and turn out unit number 10, that is cow tails. Okay, so first what we'll do, I'll read it from the head to toe, and after the reading I'll explain it for you, and during the reading you will be reading it with me. Okay, so let's read it together. How we can read it together? You will place your fingers on the text and you will start reading with me. Let's go. Cow tails. Tom Grant, a farmer in a village, could not understand how his cows kept escaping from the cowshed at night. He had 2 bolts on the gate, so he thought people were trying to steal his animals by allowing them out to wander. A neighbor set up a security camera to catch the culprits. What a surprise for Farmer Grant when he looked at the video. Daisy, one of his very own cows, had learned how to unlock both bolts and was letting all the cows out of the barn. Daisy unlocked the bolts by curling her tongue around them and pulling them back. Daisy is a very clever cow. Coming to the poem, students. The friendly cow. The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. She gives me cream with all her might, to eat with apple tart. She wanders lowing here and there, and yet she cannot stray. All in the pleasant open air, the pleasant light of the day, and blown by all the winds that passed, and wet with all the showers, she walks among the meadow's grass and eats the meadow flowers. Cow facts. One cow can produce about 2 lakh glasses of milk in a lifetime. A cow's stomach has 4 chambers to chew, store, and digest food. Cows do not bite grass. They curl their tongues around it. The oldest cow in the world was Big Bertha. She lived to be 48 years old. Cows can climb the upstairs, not down their knees, don't bend properly. So grade 5, this was all about the reading, and now we will jump to the explanation of cow tales. Tales is basically the stories. Tales means stories, कहानियाँ. तो cow की कहानियाँ, गाय की कहानियाँ, right? Tom Grant, a farmer in a village. Farmer, किसान. Okay, a man who works with growing food. जो इंसान खाना उगाता हो, खेत हो उसके, उसको फार्मर कहते हैं. विलेज मीन्स गांव. टॉम ग्रांट नाम का एक किसान रहता है एक गांव में. कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं आता था. उसको समझ नहीं आता था. कुड नॉट, नहीं, अंडरस्टैंड, समझ, उसको समझ नहीं आता था. हाउ हिज काउज केप्ट एस्केपिंग. हाउ, कैसे. हिज काउज, उसकी गायें. कैसे उसकी गायें. केप्ट, कि वो जाती रही या करती रही. एस्केपिंग, भागती रही. ठीक है, कि वो किस तरह से भाग जाती हैं. फ्रॉम द काउ शेड एट नाइट. काउ शेड गाय की रहने की जो जगह होती है. शेड इज़ बेसिकली द होम और हाउस या जो छत होती है उसको शेड कहते हैं. तो वो हैरान, टॉम ग्रांट नाम का जो वो किसान था, वो जो गांव में रहता था, वो हैरान हो गया था कि ये जो मेरी गाय है ये रात को अपनी छत से निकलकर किधर चले जाती हैं. उसको ये समझ में नहीं आ रहा था. एस्केपिंग मतलब भाग जाना.
तो वो किधर भाग जाती हैं। ही हैड 2 bolts ऑन द गेट। बोल्ट्स ताले, जो लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लट कहते हैं पश्तो में। सो ही हैड 2 bolts, उसके दरवाज़ों पे 2 लॉक्स लगे हुए थे, 2 लटें लगी हुई थी, ठीक है। सो ही थॉट, तो उसने सोचा, पीपल वर ट्राइंग टू स्टील हिज एनिमल्स, के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, पीपल लोग, ट्राइंग कोशिश, स्टील चुराना, के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसके एनिमल्स को चुरा लें। टॉम ग्रांट के जो एनिमल्स हैं, लोग चाहते हैं कि हम इसको चुरा लें, इसीलिए वो उनको रात को छोड़ देते हैं। बाय अलाउिंग, इसीलिए वो क्या करते हैं, चुराने के लिए वो क्या करते हैं, वो अलाउ कर देते हैं देम, किसको, वो जो गाय काव है उसको वो अलाउ कर देते हैं, गाय को, आउट टू वॉन्डर, वो इनको अलाउ कर देते हैं कि बाहर चले जाएं गाय जितनी भी है, और वॉन्डर यानी इधर उधर घूमे, ठीक है। तो टॉम ग्रांट को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे ये काव जो है ये हर रात को छत से निकल के बाहर चली जाती हैं, और इवन उस पे दरवाज़े पे 2 जो है लट भी लगे हुए हैं, लॉक्स भी लगे हुए हैं। तो उसको लगा कि ऐसे तो हो नहीं सकता, उसको लगा कि शायद लोग मेरी गाय भैंस चुराने के लिए क्या करते हैं, वो उनको रात को बाहर निकाल देते हैं। अ नेबर, एक नेबर, पड़ोसी, एक पड़ोसी ने सेट अप मीन्स लगा लेना या सेट कर लेना, सिक्योरिटी कैमरा, एक सिक्योरिटी कैमरा नेबर ने, उसके एक बहुत अच्छा पड़ोसी था वो, ही वॉज़ वेरी गुड नेबर, यू हैव टू बी लाइक दैम, ओके, you have to help others. So there's a neighbor of Tom Grant and he set up a security camera, जो कैमरास होते हैं छोटे छोटे, to catch the culprits, ताकि मुजरिमों को पकड़ा जा सके। कैच मीन्स पकड़ना, culprits मुजरिम। प्लीज़ डू नोट डाउन द वर्ड मीनिंग्स, ओके। तो उन्होंने एक कैमरा लगाया ताकि मुजरिमों को नोट डाउन किया जा सके कि कौन आके रात को इनको आज़ाद खुला छोड़ देता है। What a surprise for farmer Grant, फिर फार्मर ग्रांट जो है, किसान ग्रांट जो है, उसको एक सरप्राइज़ मिलता है, ठीक है। सरप्राइज़ क्या होता है, जब हमें अचानक से कोई बात पता चल जाती है ना, तो उसको भी अचानक से एक बात पता चल जाती है। When he looked at the video, जब उसने वो सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो को देखा, looked at देखना, वीडियो, you know it। डेज़ी, वन ऑफ हिज वेरी ओन काउज, डेज़ी जो है उसकी अपनी गाय भैंसों में से एक काव है, ठीक है, और उसका नाम डेज़ी है। ओन काउज, अपनी काव, अपनी गाय। हैड लर्नड, उसने सीख लिया था, हाउ टू अनलॉक, कि किस तरह अनलॉक करते हैं, किस तरह खोलते हैं, बोथ बोल्ट्स, दोनों तालों को, ठीक है, वो जो लट लगे हुए थे दरवाजे पे, ठीक है। तो डेज़ी जो है वो टॉम ग्रांट की ही एक काव थी, और डेज़ी ने सीख लिया था कि किस तरह इन दोनों लॉक्स को अनलॉक करते हैं, ठीक है। और ये डेज़ी ही थी जो सारा सब कुछ अनलॉक करके काउस को बाहर निकालती थी। Okay, this video is available on the internet, okay. So if you find that cow is unlocking the gate, तो आपको ये वीडियो आराम से मिल जाएगी। Even this picture is downloaded from there. So if you are interested, you can go and watch the video on YouTube. Had learned how to unlock both bolts and was letting all the cows out of the barn. Letting मतलब जाने देना, और वो डेज़ी ही थी जो कि सब काउस को चक के बाहर जाने देती थी। चक जो है वो फार्म को कहते हैं, जहाँ पे ये गाय भैंस बकरी ये सारे रहते हैं, उसको फार्म कहते हैं हम। लेकिन जो असल वर्ड है उर्दू का या जो पंजाबी का आप कह सकते हो, तो वो इसके लिए यूज़ होता है चक, ठीक है, जहाँ पे गाय भैंस रहते हों। और इट इज़ पश्तो में इसका बड़ा अच्छा नाम है, गुजला, राइट। गुजला इन उर्दू इज़ कॉल्ड चक and in Pashto it is called barn or farm, okay, in English, sorry, in English इसको फान या बान कहा जाता है, जो कि आपकी बुक में बान लिखा हुआ है, एंड उर्दू में इसको चक कहा जाता है और पश्तो में इसको गुजला कहा जाता है। So this was cow Daisy,
She was very smart. She used to unlock the gates at night and she used to let all the cows out at night. Daisy unlocked the bolts. डेजी जो है वो बोल्ट्स यानी वो जो लट थे, वो जो ताले थे, उनको अनलॉक करती थी बाय कर्लिंग हर टंग, अपनी जो ज़ुबान है उसको घुमा के, ठीक है, अराउंड देम, वो जो लट थे उनके अराउंड अपनी ज़ुबान को घुमा के, जैसे हम अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं घुमा के उसकी एक मुट्ठी बनाते हैं, फिर उसमें हाथ में पकड़ते हैं और खोलते हैं, डेजी ऐसे ही करती थी लेकिन अपनी ज़ुबान से, ठीक है। वो अपनी इफ़ यू डोंट नो, काउज हैज़ वेरी लॉन्ग टंग्स, उनकी ज़ुबानें जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। सो नाउ डेजी इज़ टेकिंग आउट हिज टंग एंड वो उसी टंग को निकाल के वो लॉक खोलती है, उस कर्ल करती है अपनी ज़ुबान को उस लॉक के अराउंड, और जब कर्ल करती है तो उसकी ज़ुबान जो है वो उस लॉक को पकड़ लेती है और देन शी ओपन्स इट अप एंड पुलिंग दैम बैक, और वो जो बोल्ट्स थे, वो जो लॉक्स थे, वो उनको ऐसे ज़ुबान के साथ पकड़ के पीछे खींच लेती है, ठीक है। डेजी इज़ वेरी क्लेवर काउ, इससे हमें पता चलता है कि डेजी जो है ये बहुत ही क्लेवर काउ है, बहुत स्मार्ट है, राइट। एंड इन फैक्ट शी इज़, डेफिनेटली शी इज़, बिकॉज नो एनिमल्स कैन डू दैट बट डेजी कैन डू इट, ओके। कमिंग टू द पोएम द फ्रेंडली काउ, दोस्ताना गाय, ठीक है। फ्रेंडली काउ मीन्स अच्छी गाय जो कि किसी को कुछ ना कहे, ठीक है। द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट, अब यहाँ पे पोइट कहता है कि मेरे पास एक फ्रेंडली काउ है जो कि बहुत दोस्ताना है, बहुत अच्छी है वो, एंड शी इज़ ऑल रेड एंड वाइट, और उसका कलर क्या है, रेड एंड वाइट, ठीक है। आई लव विद ऑल माई हार्ट, अब पोइट कहता है कि उस रेड एंड वाइट काउ को मैं अपने दिल से चाहता हूँ। लव मीन्स चाहना, प्यार करना, बाय हार्ट मीन्स दिल से, मैं उसको दिल से चाहता हूँ। शी गिव्स मी क्रीम, वो मुझे बालाई देती है, मलाई देती है। क्रीम मीन्स बालाई या मलाई, ठीक है। गिव्स मीन्स देना। शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट, ऑल हर माइट मतलब अपनी पूरी कोशिश करके, अपनी जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबको यूज़ करके, जितना उससे पॉसिबल है वो उतना मुझे क्रीम देती है, बलाई देती है। एंड डेफिनेटली काउज गिव्स अस मिल्क एंड फ्रॉम मिल्क कम्स द क्रीम एंड क्रीम इज़ द वेरी यम्मीएस्ट थिंग इन द मॉर्निंग। टू ईट विद एप्पल टार्ट, अब वो जो क्रीम है उसको, अब आपकी बुक जो है वो आयरिश बुक है, यूके का सिलेबस है, तो यूके में लोग जो है वो क्रीम को इस्तेमाल करते हैं एप्पल टार्ट के साथ। एप्पल टार्ट एप्पल से बनी हुई एक डिश होती है, जब एप्पल्स को बेक किया जाता है तो उससे कुछ बन जाता है, उनकी कोई डिश होती है जो कि यहाँ पे नहीं होती, तो एप्पल टार्ट के साथ वो लोग क्रीम खाते हैं। हमारे यहाँ पे क्रीम खाई जाती है पराठों के साथ, ओके। सो नाउ दिस पोएट इज सेइंग कि ये जो फ्रेंडली काउ है वो रेड एंड वाइट कलर की है, उसको मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ, वो मुझे भलाई देती है, जितना वो दे सकती है उतना वो देती है, और उस भलाई को मैं क्या करता हूँ, एप्पल टार्ट के साथ खा जाता हूँ, ओके। ऑल हर माइट पूरा ज़ोर लगा के, या जितना इंसान का बस होता है उतना। शी वॉन्डर्स लोइंग हेयर एंड देयर, शी वॉन्डर्स वो इधर उधर जाती है, वॉन्डर्स मीन इधर उधर जाना, घूमना फिरना, वो इधर उधर घूमती है। लोइंग, लोइंग वो जो काऊ आवाज़ निकालती है ना, एक वो बै टाइप, oh my animal sound is so bad, I can't do it, I'm sorry, it was a horrible sound, I know, but you can do it, I believe, yes you can, try to low, okay। काऊ की जो भैं की जो आवाज़ होती है, it is called lowing in English, ठीक है। तो वो जो है वो इधर उधर घूमती है, वो लोइंग करती है, यानी वो आवाज़ निकालती है हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ जाके, ठीक है। एंड आई नो यू गाइज कैन लो बेटर देन मी, हाँ यू गाइज कैन, आई नो यू कैन लर्न इट, एंड देन व्हेन वी विल कम टू द क्लास, हम एक एक दिन एक एक एनिमल का साउंड सीखेंगे और उसको क्या कहते हैं। जैसे मक्खी जो होती है वो बजिंग साउंड करती है, अब काउज जो है वो लोइंग करते हैं, है ना। सो वी विल लर्न ऑल दिस। एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे, और वो सारा दिन इधर उधर घूमती है, लोइंग करती है, लेकिन फिर भी, येट और फिर भी,
शी कैन नॉट, वो नहीं जाती, स्ट्रे, गुम, स्ट्रे मीन्स गुम जाना, वो इतना इधर उधर घूमती है लेकिन फिर भी वो घूमती नहीं है, वो इधर उधर नहीं, खो नहीं जाती वो कहीं पे। ऑल इन द प्लेजेंट ओपन एयर, अब वो जो काउज है वो सारे होती हैं कहाँ पे, प्लेजेंट हवा, यानी जो अच्छी हवा होती है, जब हम कहते हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, यू नो दैट गुड काइंड ऑफ एयर वेयर यू कैन से दैट रिफ्रेशिंग जो हवा होती है, वो सारी जो होती हैं वो उसमें घूमती हैं, द प्लेजेंट लाइट ऑफ द डे, और वो जो दिन की जो ये खूबसूरत रोशनी होती है वो इसमें भी घूमती होती है। एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास्ट, अब जितनी भी हवाएं गुजरती हैं, विंड्स मीन्स चलती हुई हवा, तो जितनी भी हवाएं गुजरती हैं, पास्ट मीन गुजरना, तो ये जो काउज हैं ये उससे ब्लोन हो जाती है, यानी ये हवाएं उसको छू के निकलती हैं, ब्लो करती हैं, ये काउज जो है ये उन हवाओं को महसूस करती हैं। ओके। एंड वेट विद ऑल द शावर्स, और जो आसमान से फुआरा गिरता है यानी जो बारिश होती है, ये काउज जो होते हैं ये उससे गीली भी हो जाती है। वेट मीन्स गीला होना, शावर्स फुआरा, ठीक है। आसमान का फुआरा अब कौन सा होता है, जो बारिश होती है, तो वो ये काउज जो होती हैं ये देखिए ये कितनी मज़े का काम करती हैं, ये इधर उधर जाती हैं, आवाज़ें निकालती हैं, घूमती नहीं है, ये कहीं पे खो नहीं जाती, ये खुली हवा में घूमती है, दिन की खूबसूरत रोशनी में ये इधर उधर जाती हैं, और जितनी भी हवाएं गुजर रही होती हैं ये इनको टच करके जाती हैं काउस को। एंड वेट विद ऑल द शावर्स, और जितनी भी बारिशें होती हैं उससे भी ये गीली हो जाती हैं। शी वॉक्स अमंग द मीडोज़ ग्रास, फिर भी वो क्या करती है, मीडोज़ ग्रास मीन्स जो दश्तों की जो ग्रास होती है, जो ज़मीन पे जो आम ग्रास लगी होती है, तो वो घूमती रहती है, वो चलती रहती है मीडोज़ ग्रास में, दश्तों की जो घास होती है उसके ऊपर ये चलती हैं। मीडोज़ बेसिकली प्लेन एरिया होता है जहाँ पे दरख्त वगैरह तो नहीं होते लेकिन ग्रास होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसको मीडो कहते हैं। एंड ईट द मीडो फ्लावर्स, और वो सारा दिन क्या करती है, वो मीडो के फ्लावर्स को खा जाती है। ओके। काउ फैक्ट्स पे आ जाते हैं। वन काउ कैन प्रोड्यूस अबाउट 2 lakhs glasses of milk in a lifetime। एक काउ जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में हमें 2 लाख ग्लास दूध के देती है, ठीक है। आप सोच सकते हैं ये दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ओके। प्रोड्यूस मीन्स टू मेक, बनाना, ठीक है। तो एक काउ जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 लाख ग्लासेस बनाती है दूध के, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। A cow's stomach has 4 chambers to chew, store and digest food। अब हमारा जो स्टमक होता है उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, लेकिन जो काऊ होते हैं काऊ, इनके स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और एक जो है वो च्यूइंग के लिए रखा होता है, चबाने के लिए, मैदा, कुछ हम मुंह में चबाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि मैदे में चबाते हैं। कैमल, आप जानते हो ऊँट, कैमल भी जो है वो अपने स्टमक में ही ज़्यादातर च्यूइंग वहीं पे करता है, चबाता है खाने को। एंड सो डज़ द काउज़, तो एक सेक्शन उसका च्यूइंग के लिए होता है, दूसरा स्टोरिंग के लिए होता है, तीसरा डाइजेशन के लिए होता है। हमारा स्टमक जो है वो सिर्फ डाइजेस्ट करता है, उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, लेकिन इनका स्टमक च्यू भी करता है और इनका स्टमक स्टोर भी करता है। एंड सेम इज़ द केस विद द कैमल का स्टमक भी ऐसे ही होता है। काउज़ डू नॉट बाइट ग्रास, काउज़ जो होते हैं वो बाइट नहीं करते ग्रास को, वो ऐसे चक नहीं लगाते दांतों से ग्रास के ऊपर, ठीक है, बल्कि वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं। ओ आई नो दिस पिक्चर इज़ वेरी फनी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डू, दे कर्ल देयर टंग्स अराउंड इट, वो ग्रास के आसपास अपनी जो ज़ुबान है उसको कर्ल कर देते हैं और उसको खींच लेते हैं। जैसे उसने वो लॉक खोला था ना, बिल्कुल वैसे आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, उसने दांतों से नहीं खींचा ग्रास को, उसने ज़बान से खींचा है, ठीक है। सेम द ओल्डेस्ट काउ इन द वर्ल्ड वॉज बिग बर्था, दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र रखने वाली काउ जो है उसका नाम है बिग बर्था। शी लिव टू बी 48 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र जो थी वो 48 ईयर्स थी, और वो बाकी काउ से उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। यू कैन सी दिस इज़ बिग बर्था। ओके। एंड दिस इज़ द मोस्ट ओल्ड काउ ऑफ द वर्ल्ड, इसकी उम्र बाकी दुनिया की काउ से सबसे ज़्यादा थी। काउज़ कैन क्लाइंब अप स्टेयर्स,
काउज जो होते हैं वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ सकते हैं, क्लाइंब अप, चढ़ना सीढ़ियों पर। तो काउज जो है वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ सकते हैं, नॉट डाउन, लेकिन वो नीचे नहीं उतर सकते। देयर नीज डोंट बेंड प्रॉपरली, उनके जो नीज होते हैं, उनके जो घुटने होते हैं वो सही तरीके से प्रॉपरली नहीं मुड़ते, बेंड नहीं होते, ठीक है। एंड आई थिंक दिस केस इज़ विद ह्यूमन बींग्स एज वेल, बिकॉज वन टाइम बिकॉज व्हेनेवर एक इंसान जो होता है वो जब पहाड़ पे उसको चढ़ने की आदत ना हो या ज़्यादा चलने की आदत ना हो और सडनली वो हाइकिंग पे चला जाए, जैसे मैं गई थी अचानक सडनली हाइकिंग पे, तो चढ़ तो हम गए थे लेकिन वो जो उतरना था तो द नीज वर फीलिंग, अजीब सी फीलिंग हो रही थी, उतर नहीं पा रहे थे हम। वो जो नीज़ होती हैं ये बंदे की बिल्कुल डंडे के जैसे हो जाती हैं, एंड यू डोंट फील लाइक बेंडिंग देम, आप उनको मोड़ नहीं सकते आराम से। और ये उन लोगों के साथ होता है जो कि ज़्यादा नहीं चलते या ज़्यादा हाइकिंग नहीं करते। अब जो लोग चढ़ते हैं उतरते हैं पहाड़ों पर उनके लिए बहुत ईजी होता होगा, बट आई थिंक वी आर सम हाउ टर्निंग लाइक काउज। इतना हम आराम करने लगे हैं कि अब हम काउस की तरह होते जा रहे हैं। इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? टेल मी। आई थिंक इट इज़ बैड, बिकॉज हमारी नीज़ में कैपेबिलिटी है मुड़ने की, लेकिन वो हम इतना आराम कर लेते हैं कि वो कैपेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। सो व्हाट वी विल डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ओके, ताकि हमारे नीज़ जो है वो काऊ की तरह ना हो और हम सीढ़ियों पर उतर भी सकें और चढ़ भी सकें, राइट। दैट्स इट ग्रेड 5। आई होप यू एन्जॉयड, एंड बहुत ही मज़े का ये लेसन था। वर्ड मीनिंग्स की तरफ आ जाते हैं, right? Okay, so these are the word meanings. Escaping, running away, भाग जाना. Cowshed, place of living for cows. cows की रहने की जगह या cows की जो रहने की जगह की जो छत होती है. bolts, locks, जो लट होते हैं. thought, think, सोचना, उसका थर्ड फॉर्म है ये. steal, rob, चुरा लेना. allowing, encourage, give permission, किसी चीज़ को इजाज़त देना या उसको जाने देना. wander, go here and there, इधर उधर घूमना. culprits, criminals, मुजरिम. letting, giving permission, जाने देना या किसी चीज़ को परमिशन देना. barn, farm, जो मैंने आपको कहा चक होते हैं या जो वोजल जिसको कहते हैं, राइट. I translate some things for you in Pashto. इट इज़ जस्ट बिकॉज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप उस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ जाओ, ओके. कर्लिंग, ट्विस्टिंग, घुमा देना ऐसे, यू नो, गोल 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 गोल, बिल्कुल स्प्रिंग जैसे, ओके. क्लेवर, स्मार्ट, बहुत ही होशियार जिसको कहते हैं. माइट, पॉसिबिलिटी, यानी एक जितनी कोशिश हो सकती है, जितना पॉसिबल होता है. एप्पल टार्ट, नेम ऑफ अ डिश. वेस्टर्न साइड पे ये एक डिश खाई जाती है जिसको एप्पल टार्ट कहते हैं. लोइंग, डीप साउंड मेड बाय काउ. काउ के वो जो गहरी सी आवाज़ होती है उनकी, उसको लोइंग कहते हैं. स्ट्रे, गेट लॉस्ट, खो जाना. प्लेजेंट, एन्जॉयबल, बहुत ही मज़े का या अच्छी. ब्लोन, वेव्ड, यानी टकराना किसी चीज़ के साथ. ब्लोन बेसिकली उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हवा हमारे साथ टकरा जाती है तो हम कहते हैं द विंड ब्लोन मी. अब इसका एग्जैक्टली ये मतलब भी नहीं है कि हवा ने आपको उड़ा दिया, लेकिन आपको ये है कि ये जो हवा है ये मेरे साथ टच हो के गई है, ठीक है. मीडोज़, फील्ड, जो ये एक मीडोज़ जो होता है वो बिल्कुल खेत खलिहान जिसको कहते हैं, वैसा एरिया, बहुत ही हरा भरा एरिया जहाँ पे कोई आबादी ना हो, जहाँ पे इतने बड़े बड़े दरख्त ना हो, लेकिन सिर्फ ग्रास और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. अमंग, इन. प्रोड्यूस, मेक, बनाना. चेम्बर, सेक्शन, हिस्से. That's it, grade 5. I hope you enjoyed. I hope you learned about the cows. And if you have seen a real cow in a real world, what you have to do, you have to write about cows, a paragraph about cows, and share your information of cows with us. Write a paragraph on cows on a page and write your name on that page and send me picture of that page. Okay, and you will be marked for it. आपको maybe stars मिले, excellent मिले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, right? It's a competition, you can take it. And yes, that's it, grade 5. I hope you enjoyed. Till the next lesson, take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, wash your hands properly and stay safe. Allah Hafiz, grade 5.